Good afternoon, students, and welcome to this another session of accounts. Today, we will be taking up question from 2019 paper. We will take a question from 2019 paper, and the topic is not for profit organization. Question number 6 used to come from not for profit organization. Given below is a balance sheet as on 1st April 2015 and the receipt and payment account for the year ending 31st March 2016. So you are given receipt and payment account for the year 15-16 and opening balance sheet is also given, and you are required to prepare income and expenditure account and a balance sheet as on that date. The opening balance sheet is as under: capital fund, building fund, subscription, received in advance for the year 15-16. So what this signifies कि पिछले साल इन लोग को 9,000 रुपया एडवांस में मिल गया था 15-16 का, तो अपने को करंट ईयर अपना क्या है 15-16, तो पिछले साल अपन को ये इनकम मिल गई थी, तो पिछले साल जो अपन को इनकम मिली थी वो अपन ने लायबिलिटी में बता दी थी पिछले साल की बैलेंस शीट में, लेकिन इस बार अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये वाली इनकम को ऐड करना है. देन असेट साइड, द असेट्स आर गिवन: playground furniture, sports material, building fund investment, cash and outstanding subscription. Subscription outstanding means previous year this much amount was outstanding. Now we come to receipt and payment account. Opening balance is there, subscription is there. Subscription, usually there is an adjustment. Let us see what is the adjustment. Subscription received during the year include 34,000 for the previous year. So there are adjustment, we will highlight subscription. It mentioned that out of this 34,000 was received for the previous year. Previous year 34,000 was outstanding. So this much amount was outstanding and this much amount we have received. So there is no balance outstanding of the previous year. Then 10,000 we have received for the next year. Next year, this means we have received 10,000 for the coming year. So what all we have received for the coming year is subscription in advance. So this 10,000 we will have to subtract from this amount. Current year subscription is to be received. It means that this much amount is outstanding. We will have to add it in the subscription. In detail, when we do the sum, we shall understand it further clearly. Donation. Donation point. Admission fees and donation are to be capitalized. Point number 2, admission and donations are to be capitalized. So it will not be treated as a revenue income. This will be added to the capital fund. Donation and admission fees are to be capitalized. In point number 2, it is specifically mentioned. Then sundry receipt, it is a regular income. It will be credited to income side of income and expenditure account. Interest on investment in building fund. Interest on investment in building fund. This building fund is a fund made for a specific purpose. So any interest received on building fund will be added to this fund. Any interest received will be added to this fund. It is a specific income, it will be added to that fund. Sports material purchased. You see, you are given the opening stock of sports material, then this much amount you have purchased, and stock also is, closing stock also is there. So we will have to find out the entire detail of consumption of sports material. This also we will have to calculate. We shall see it when we solve the sum step by step.
salary, it is a regular income. Sorry, it is a regular expenditure. It will be shown in the expenditure side of income and expenditure account. Similarly, office expenses, telephone charges are regular expenses. They will come in the expenditure side of income and expenditure account. Closing cash balance will be shown in the balance sheet asset side. So we have highlighted all the adjustments. Now one by one we shall proceed to do the sum. First, let us take the receipt side by subscription. By subscription. By subscription, 2,01,800. Now let us see the adjustments. Subscription received during the year include 34,000 for the previous year. अरे बच्चों, इसमें बताया है कि ये जो मिला है ना, इसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर का भी शामिल है. इस 2,01,800 में प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी शामिल है. तो अपन को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. लेस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर. कितना अमाउंट है? 34,000. 34,000 प्रीवियस ईयर का भी अपन को मिला है. और प्रीवियस ईयर में कितना? 34 आउटस्टैंडिंग था. 34 मिल गया अपन को. तो बैलेंस शीट में कुछ भी बाकी, पिछले साल का कुछ भी बाकी नहीं रहा. 34 बाकी था, 34 मिल गया, तो पिछले साल का कुछ भी बाकी नहीं रहा. अपन सिंपली इसको माइनस कर देंगे. फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन. एंड 10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब ये जो 2,01,800 है ना, इसमें 10,000 रुपया नेक्स्ट ईयर का भी, कमिंग ईयर का भी मिला हुआ है. तो कमिंग ईयर अपन देखिए, मेन चीज क्या होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल उसी साल की इनकम आती है या उसी साल का खर्चा आता है. तो जो भी कमिंग ईयर का, आने वाले साल का है या पिछले साल का है, आप उसको अलग कर देते हैं. तो जो भी अपन को नेक्स्ट ईयर का मिला है या प्रीवियस ईयर का मिला है, वो अपन माइनस कर देंगे. लेस रिसीव्ड फॉर ईयर 16-17. अपन को कितना मिला है 16-17 का? 10,000 रुपया. तो 16-17 का जो 10,000 रुपया मिला है ना, वो अपन ने माइनस कर दिया. अब अपन देखते हैं अपने पास कितना बचा. 2,01,800 में से 34,000 और 10,000. उसके बाद करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 29,000 इज टू बी रिसीव्ड. मतलब 29,000 बाकी है. क्या बाकी है? 29,000 आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग इतना 29,000 जो आउटस्टैंडिंग है ना, उसको ऐड करेंगे. ठीक है बच्चों, जो आउटस्टैंडिंग है वो अपन ने ऐड करा. देखिए, पिछले साल की बैलेंस शीट में आपको क्या बता रखा था कि पिछले साल में आपको 15-16, आपका करंट ईयर क्या है? 15-16. आपको 9,000 रुपया मिल गया था पिछले साल. आपको 9,000 रुपया मिल गया था. किस साल का? 15-16 का. तो जो पिछले साल मिल गया लेकिन रिलेट करता है करंट ईयर से, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड. जो रिलेट करता है करंट ईयर का लेकिन आपको पिछले साल मिल गया, आपको इस साल की इनकम में बताना पड़ेगा. ऐड रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर. रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर में कितना रिसीव करा था आपने? 9,000 रुपया. वापस बता दूंगा बच्चों एक बार, जस्ट कैलकुलेशन हो जाए. दिस प्लस दिस प्लस दिस. देखिए बच्चों, आपको 2,01,800 रुपया मिले थे, लेकिन उसमें से 34,000 प्रीवियस ईयर के थे, वो आपको हटाने पड़ेंगे.
16, 17 नेक्स्ट ईयर के लिए आपको 10,000 रुपए मिले, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। अब इस साल का 29,000 आपको स्टिल रिसीव करना है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और 9,000 रुपये आपको पिछले साल ही मिल गया था, लेकिन वो इस साल का है, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। और इस बार की इनकम आपकी इतनी हो गई। अब जो ये आउटस्टैंडिंग है और जो आपने नेक्स्ट ईयर का रिसीव करा है, उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में अपन हाथों हाथ ही कर देते हैं और हाथों हाथ ही लिख देते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों? आपका आउटस्टैंडिंग है 29,000। आउटस्टैंडिंग है 29,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है बच्चों? 10,000। 10,000 आपको नेक्स्ट ईयर का मिल गया, वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं डोनेशन और एडमिशन फीस। डोनेशन और एडमिशन फीस पॉइंट नंबर 2 बोलता है दे आर टू बी कैपिटलाइज्ड। डोनेशन और एडमिशन फीस, तो अपन क्या करेंगे? पहले तो कैपिटल फंड, इनको कैपिटलाइज करना है। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस अपन लेंगे पिछले साल की बैलेंस शीट से 9,25,000। 9,25,000 ये अपन ने लिख लिया। एक दो बैलेंसेस। बिल्डिंग फंड भी अपन लिख लेते हैं हाथों हाथी। ओपनिंग बैलेंस है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड आपका 5 लाख रुपया है। 5 लाख रुपया अपन ने लिख लिया। और ये 9,000 का अपन एडजस्टमेंट कर चुके हैं, तो लायबिलिटी साइड पिछले साल की पूरी अपन ने देख ली है। अब ये बोलता है कि जो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट में डोनेशन और एडमिशन फीस है ना, डोनेशन और एडमिशन फीस, इसको कैपिटलाइज कर लो। तो अपन क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे कैपिटल फंड में। ऐड डोनेशन और ऐड एडमिशन फीस, इन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे। डोनेशन कितना है? डोनेशन 56,000। डोनेशन 56,000 और एडमिशन फीस 13,000। एडमिशन फीस 13,000, तो इन दोनों को अपन ने ऐड कर लिया। अब सन्ड्री रिसीट। सन्ड्री रिसीट क्या है? रेगुलर इनकम है, तो इसको इनकम साइड में बता देंगे 2,700 बाय सन्ड्री रिसीट 2,700। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड, ये देखिए अपन को किसके लिए मिला है? बिल्डिंग फंड के लिए। तो जो इंटरेस्ट बिल्डिंग फंड के लिए मिला है ना, जो अपने पास बिल्डिंग फंड बना के रखा है ना अपन ने यहाँ पे, इसी में ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो भी आपको बिल्डिंग फंड के इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, आप 18,000 यहीं पे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आउटर कॉलम में 5 लाख प्लस 18,000 आप यहाँ पे बता देंगे। तो रिसीट साइड सब बच्चों अपन ने 1 बाय 1 देख ली। अब अपन पेमेंट साइड की तरफ चलते हैं। पेमेंट साइड में पहला आइटम है बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करा है वो आपका खर्चा है, तो यहां पे लिखेंगे अपन को टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना है अपन ने कंज्यूम करा है? पहले तो अपन को लिखना पड़ेगा, अपने पास ओपनिंग स्टॉक भी है तो 44,000 ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक
14,000 अपने पास, सॉरी 44,000 अपने पास ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद आता है परचेज, अपन ने कितना करा है, एड परचेजेस। परचेजेस अपनी कितनी है बच्चों, यहाँ पे 52,000 परचेजेस है, 52,000 परचेजेस है। तो ये अपन ने ऐड करके इतना लिख लिया। अब पॉइंट नंबर 1 एडजस्टमेंट में बता रखा है कि एंड में इतना स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है, इतना मटेरियल बच गया है। तो जो बच गया है ना उसको अपन क्या करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना है अपना 48,000, तो 48,000 को लेस करा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। 48,000 अपन ने खर्चे में लिख लिया। सैलरी एंड वेजेस 87,000 ये खर्चा है टू सैलरीज एंड वेजेस आपका 87,000 आपने यहां पे लिख लिया। नेक्स्ट आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 1,26,000 आपने लिख लिया। टेलीफोन चार्जेस 12,400 टू टेलीफोन चार्जेस 12,400। अगर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में दे रखा होता आउटस्टैंडिंग है तो आप ऐड कर देते और लायबिलिटी में बता देते। बस इतनी सी बात है, खर्चों को आपको एक्सपेंडिचर में लिखना है, कुछ प्रीपेड हो तो माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड करना है, उसका दूसरा इफेक्ट देना है। अब क्या है, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में जाएगा आपका कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 34,100। ठीक है, सारी ये वाला एडजस्टमेंट कर लिया, ये कर लिया, सब्सक्रिप्शन का भी कर लिया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का सब चीजें अपन ने कर ली थी। असेट साइड अपन बैलेंस शीट में देखिए, शुरू में अपने पास क्या था, इतना प्लेग्राउंड का बैलेंस था। आपने अगर कुछ और लैंड खरीदा होता तो वो पेमेंट में आता ना, बाय परचेज ऑफ लैंड, तो 8 लाख में उसको ऐड कर देते। यहाँ पे परचेज ऑफ प्लेग्राउंड कुछ है नहीं, तो सिंपल जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आप यहां पे लिख दोगे प्लेग्राउंड 8 लाख, प्लेग्राउंड 8 लाख। उसके बाद फर्नीचर 36,000, फर्नीचर 36,000 फर्नीचर। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, देखिए यहां पे आपने एडजस्टमेंट करा था, क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, आपका बैलेंस शीट में जाएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बल्कि मैं चाहूंगा कि जब आपने ये एडजस्टमेंट करा था ना, तभी आपको हाथों हाथ इसका सेकंड इफेक्ट यहां पे लिख देना चाहिए। उसके बाद बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया। अगर कुछ पेमेंट आप और करते, इस बार के रिसीप्ट एंड पेमेंट में होता कि बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में और पैसा लगाया है, तो वो भी इस 5 लाख में जुड़ जाता। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। कैश एट बैंक आपने ये क्लोजिंग बैलेंस ले लिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 34,000 बाकी था और आपने यहाँ पे ये पॉइंट बोलता है 34,000 रिसीव करा। अगर यहाँ पे 32,000 ही होता तो आपको 2,000 रुपया फिर इस बार की बैलेंस शीट में बताना पड़ता कि इतना बाकी था और इतना हमने रिसीव करा है। ठीक है बच्चों, तो
ये सब अपन ने 1 by 1 करके इफेक्ट दे दिया है। अब अपन क्या करते हैं, पहले इस साइड की टोटल करते हैं, आपके इनकम साइड की टोटल करते हैं। इनकम साइड की टोटल देखते हैं कितनी आती है, इज इक्वल टू सम 1,98,500। और इधर की टोटल देखते हैं खर्चों की कितनी आती है। खर्चों की टोटल है 2,07,000 2,73,400। अब अपन देखते हैं कि खर्चे की टोटल ज्यादा है, तो खर्चे में से इनकम को माइनस करना पड़ेगा। 1,98,500 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये आपका 74,900। बच्चों जनरली क्या होता है, इनकम ज्यादा आती है तो अपन इनकम में से खर्चों को माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो खर्चों में से इनकम को माइनस करते हैं तो बाकी क्या बचा, डेफिसिट। बाय डेफिसिट कितना है, 74,900। तो आपका इस बार का डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो आपका ये डेफिसिट आ गया है। अब इस डेफिसिट का क्या करोगे बच्चों, अगर सरप्लस होता है तो यहाँ पे ऐड करते हो, डेफिसिट है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे, डेफिसिट है तो माइनस करोगे, यहाँ पे लिखोगे लेस डेफिसिट 74,900 is equal to this minus this, तो ये आपका 9,19,100। अब अपन ने सारी चीजें कर ली है, अपन इधर लाइबिलिटी साइड की टोटल कर लेते हैं। ये 14,47,100 और इधर की भी टोटल कर लेते हैं अपन। इधर की टोटल कितनी आती है आपकी एसेट साइड की, 14,47,100। आपकी बैलेंस शीट बड़े आसानी के साथ आराम से मिल गई, बिना कोई झंझट या टेंशन के। बस सारे इफेक्ट्स आप ध्यान रख के देते जाइए, ये आपकी बैलेंस शीट आसानी के साथ टैली हो गई। 12 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप देखिए मैंने आपको समझाते हुए कितने टाइप में करा है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो प्लीज व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी है, आप लिखिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए घर पे और अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट करते रहिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।